Today, with another session here live on Higher Education Commission's Education Transformation Agreement, HEC's EDU TV, we are live again for an ETA live session. First of all, I would actually take a moment to congratulate and thanks the amazing team behind pulling off these events. Uh, the Higher Education Commission EDU TV team, as well as the team who's actually behind pulling off the Education Transformation Agreement, right from Director IT, Mr. Naveed Tahir, Mr. Abdullah Fayaz Chatha, Sahib, Mr. Faisal Rafiq, Mr. Specially and foremostly, Mr. Rashid Saab for actually putting a lot of efforts in actually bringing these events right to you, your higher education institutes, as well as to your universities and all the other stuff, maybe like you are an IT admin, a faculty or a student. Next up, actually, I'll be going to elaborate more on how as the today's session is actually titled as how you can actually prepare and schedule your first Microsoft exam or Microsoft certification exam. Because for the recent, like maybe past 4 to 5 years, the criteria and the methodology of actually preparing and scheduling the Microsoft examinations have rapidly changed, I would say. Uh, आज से अगर 3-4 साल पहले की हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन एग्जाम को स्केड्यूल करने के लिए आपको जस्ट you have actually different sort of providers like Certiport, which was actually a very familiar portal to all of you, or बल्कि even when I actually talk about 2018 or 2019, Microsoft actually offers some sort of actually voucher codes in the form of cards, and that actually via Higher Education Commission will be actually delivered to your universities, and at every university in every region and every city, we had actually our Microsoft certification exam labs. That's actually a physical lab of a university, and there will be actually a certified person who was like able to assist you in exams and take the exam in a proper fashion. Like हर यूनिवर्सिटी में एक लैब बिल्ड था या साइन था फॉर माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन एग्जाम्स, जहाँ पे फैकल्टी, आईटी एडमिन्स और स्टूडेंट्स कार्ड की फॉर्म में एक फिजिकल वाउचर होता था उनके पास, और देन एक्चुअली दैट पर्सन uses that voucher actually to get माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन, और वहाँ पे ही बैठ के आपका डायरेक्टली एग्जाम कंडक्ट होता था. तो दिस वाज एक्चुअली द सिनेरियो बैक इन like 4 or 5 years ago. Then due to COVID hit, like the whole sort of working methodology, or you can say uh, there's actually a paradigm shift. And in order to actually cope up with that paradigm shift, Microsoft actually offered work from home, or like maybe certify from home examinations. At that time, actually, we started with our partner Certiport. That was actually a very familiar process and a very simple and short process. But later on, for fundamental and advanced role-based certifications, Microsoft actually then pulled off another partner, which is actually Pearson VUE, through which actually you can schedule your advanced and role-based certification exams. But in the very last year, actually, Pearson acquired Certiport. So now actually Pearson enforces to take the exams via Pearson VUE, which is actually their flagship, state-of-the-art and most advanced exam taking service. So sort of like an exam agency. So for this, today we are just going to elaborate कि कैसे आप अपनी Microsoft certification exam को अच्छे से prepare कर सकते हैं using the tools and resources we have over the Microsoft Learn portal. And secondly, the most important one, because like काफी लोग prepare भी कर लेते हैं और एक hands-on experience भी ले लेते हैं उस technology में,
लेकिन when it comes to actually scheduling their examination, that actually becomes very daunting for them. और आज हम उसी daunting process को with helpful tips and tricks बड़े अच्छे तरीके से A to Z methodology से समझेंगे. For that, let me actually first of all share my screen with you all, and then we can like move forward. Okay, I believe like screen is visible, and now we can actually get started with this. Like you can simply go to your maybe like any of the web browser you use. You can actually go and actually have Microsoft Learn. Just simply by putting this search, you actually get to know about the very first search result, that is actually training Microsoft Learn. For that, actually, you have to actually be logged in via your Microsoft account. आपके पास आपका Microsoft account होना लाजमी है for actually like in order to actually store those credentials. तो उसके लिए अभी जो मेरा प्राइमरी ईमेल अकाउंट है, मेरा पर्सनल ईमेल अकाउंट है, वो लॉग्ड इन है, और उसके थ्रू मैंने काफ़ी ट्रेनिंग्स, काफ़ी सर्टिफिकेशंस वगैरह भी की हुई हैं. अगर आप जाते हैं इस तरह अपनी प्रोफाइल में, तो हेयर एक्चुअली यू गेट टू नो कि व्हाट एग्जैक्टली इज लाइक क्या क्या वो सारे क्रेडेंशियल्स हैं जो अभी आपके पास मौजूद हैं. तो सबसे पहले बैजेस की बात करते हैं. तो बैजेस इज समवेयर यू कैन से कि माइक्रोसॉफ्ट लर्न एक बहुत बड़ी लर्निंग रिपोजिटरी है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट का जो अपना टेक्नोलॉजी स्टैक है प्लस जो ओपन सोर्स स्टैक है, वहाँ पे कैसे आप स्केल अप कर सकते हैं ऑन वेरियस टेक्नोलॉजीज. अभी मैं अचीवमेंट्स की टैब्स में हूँ जहाँ पे मॉड्यूल्स मैंने कई मॉड्यूल्स किए हुए हैं विद द लेटेस्ट वन लाइक configuring Power BI report filters. Then we have actually enhanced Power BI report designs for user experience. तो ये sort of different role based modules हैं. इसके अलावा different modules को मिला के Microsoft Learn में learning paths बन जाती हैं, which is like कि अगर मैंने Power BI सीखना है और Power BI में भी, या let's suppose मैंने सिर्फ Teams को administer करना सीखना है, Teams की administration सीखनी है, इसके लिए एक सर्टिफिकेशन आती है which is actually MS700 मैनेज मीटिंग्स एंड कॉलिंग इन माइक्रोसॉफ्ट टीम्स. तो ये जो है ये एक लर्निंग पाथ है. इसके अंदर फिर फर्दर इस तरह के छोटे छोटे काफी मॉड्यूल्स होंगे which actually comprises and leads to becoming a learning path. देन हमारे पास उन्हीं लर्निंग पाथ्स को मिला के हम एक फुल फ्लेज कोर्स भी बना देते हैं. जैसे मेरी स्क्रीन पे अब जो कोर्सेज हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई डाटा एनालिस्ट, और सेकेंडली है मैनेजिंग माइक्रोसॉफ्ट टीम्स. इसके अलावा आपके प्लान्स भी होते हैं लाइक इफ यू आर लाइक परस्यूइंग अ करियर एज लाइक मे बी अ डेवऑप्स इंजीनियर, तो आप माइक्रोसॉफ्ट लर्न पे जाके रोल बेस्ड में जाके वहाँ पे आप प्रिपेयर कर सकते हैं कि डेवऑप्स के लैंडस्केप में अगर आपने करियर बनाना, तो व्हाट एग्जैक्टली आर द की फंडामेंटल स्टफ के जहाँ पे आप जाके उस प्लान को पहले परस्यू करेंगे, और देन फिर आप वो कोर्सेज, लर्निंग पास और मॉड्यूल्स करेंगे जिससे आपको हैंड्स ऑन नॉलेज भी मिलेगी. इसके अलावा अगर कोई और माइक्रोसॉफ्ट की आपको सर्टिफिकेशन या इस तरह का क्रेडेंशियल है, तो वो अदर्स की टैब में आपको शो होगा. अब मैं अगर आपको जस्ट ट्रॉफीज और बैजेस के हवाले से समझाऊं, तो आई विल बी एक्चुअली गोइंग बैक टू माइक्रोसॉफ्ट लर्न, और यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा आउटलुक. आउटलुक लाइक इज और फ्लैगशिप ईमेलिंग सर्विस, और मैं इसमें ट्रेनिंग में जाऊंगा ऑल की जगह, और आई विल बी गोइंग इनटू सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग, और मैं लिखूंगा बिल्ड ऑफिस एडटेंस फॉर आउटलुक. अब ये जो हमारा एक मॉड्यूल है जिसका जो ड्यूरेशन है वो है 1 hours and 6 minutes, और इसमें 8 यूनिट्स हैं. इसकी कोई प्री रेक्विजिट्स नहीं है, जस्ट आपको एक एक्सपीरियंस हो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक फॉर वेब और फॉर डेस्कटॉप दोनों में. वही बात है कि ये सारे जो मॉड्यूल्स हैं, 9 मॉड्यूल्स हैं, ये मिला के लाइक वी हैव एक्चुअली गॉट अ लर्निंग पाथ ऑफ बिल्डिंग ऑफिस एड-इन्स
फॉर आउटलुक। जब ये मैं कंप्लीट कर लूंगा तो मेरी यहाँ पे एक और बैज, एक और ट्रॉफी ऐड होगी फॉर दिस मॉड्यूल्स एंड फॉर दिस लर्निंग पाथ। तो आई होप यू हैव गॉट दिस क्राइटेरिया कि व्हाट एग्जैक्टली दिस मीन्स। इसके अलावा आपकी एक्टिविटी है कि जी आपने लाइक जैसे एक नॉर्मल मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सवेयर में आपके पास आपकी जितनी भी सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी है या ट्रैक रिकॉर्ड है वो आपका डेटाबेस में सेव होता रहता है। सेम इज द केस विद माइक्रोसॉफ्ट लर्न। देन ट्रेनिंग में जब आप जाते हैं तो इट शोज कि आपने क्या क्या चीज़ें कंप्लीट की हुई हैं। प्लान्स को भी पहले मैं टच कर चुका हूँ। देन एक्चुअली वी हैव माइक्रोसॉफ्ट लर्न के चैलेंजेस। लाइक देयर आर डिफरेंट चैलेंजेस जिसके रिवार्ड्स भी होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट खुद भी देता है। इवन कुछ ऐसे रिवार्ड्स भी होते हैं जिसमें वो चैलेंज जब आप कंप्लीट करते हैं तो आपको माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम का वाउचर है वो भी आपको फ्रीली अवेलेबल मिलता है। इसके अलावा क्रेडेंशियल्स की जहाँ तक बात आती है तो लेट मी गो इनटू दैट। अब अप्लाइड स्किल्स जो हैं, मैं अगर उन पे क्लिक करूँ तो ये माइक्रोसॉफ्ट लर्न के कुछ अप्लाइड स्किल्स हैं कि जब आप ये वाला करेंगे तो देन आपके पास ना ये सॉर्ट ऑफ एक मिनी सर्टिफिकेशन आपको अप्लाइड स्किल्स में मिल जाएगी। लेकिन अगर वाकई आपने माइक्रोसॉफ्ट की कोर क्रेडेंशियल्स या कोर सर्टिफिकेशंस करनी है तो वो आपकी यहाँ पे शो होंगी। अब मेरे कुछ पास्ट सर्टिफिकेट्स हैं, कुछ पास्ट एग्जाम्स हैं। अब मैं सिर्फ ऊपर वाली इस सर्टिफिकेशन की बात करूं जो कि है माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एजर एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट। अब जो आपकी फंडामेंटल्स की एग्जाम्स हैं जैसे ये D365 ERP है, इट्स एक्चुअली अ फंडामेंटल एग्जाम जो कि मैंने 23 नवंबर 2022 को किया था। ये एवरग्रीन रहेगा और ये कभी एक्सपायर नहीं होगा। जबकि जो आपके रोल बेस्ड और एडवांस्ड सर्टिफिकेशंस होती हैं, बिकॉज एवरी नाउ एंड देन लाइक मे बी इन 18 मंथ्स, मे बी इन 12 मंथ्स, हर वो टेक्नोलॉजी, हर वो प्लेटफॉर्म एक्चुअली कीप्स ऑन चेंजिंग और एक्सपोनेंशियल उसमें सॉर्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट या इंक्रीमेंटल चेंजेस आती हैं, जिसकी वजह से होता ये है कि ये जो आपकी रोल बेस्ड सर्टिफिकेशन होती है ये अब मैंने 19 अक्टूबर 2022 को ये की थी। मैंने इसे लास्ट ईयर भी सितंबर में रिन्यू किया था। और अगर मैं इस साल भी लाइक रिन्यू करूंगा, अभी इसका एक छोटा सा मिनी एग्जाम होता है जो कि कुछ एमसीक्यूज होते हैं जो, और कुछ टॉपिक्स होते हैं वो जो के यानी जो नई चीजें ऐड हो जाती हैं उसके लिए। वो करने के बाद अगर मैं कर लेता हूँ तो देन इट विल एक्सटेंड टू अक्टूबर 2025। तो कहने का मकसद ये है कि फंडामेंटल्स के जो एग्जाम्स हैं वो लाइफ टाइम एसोसिएटेड होते हैं, और जो आपके एडवांस्ड रोल बेस्ड एग्जाम्स हैं वो आपको हर साल में एक बार रिन्यू करना पड़ता है या हर 2 साल में एक बार रिन्यू करना पड़ता है। अगेन ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है बिकॉज लाइक यू डोंट हैव टू लाइक स्पेंड टू मच ऑन लाइक रादर कि अगर इसकी वैलिडिटी 1 साल या 2 साल होती तो हर 1 या 2 साल बाद आपको दोबारा सर्टिफिकेशन एग्जाम का सॉर्ट ऑफ लाइक यू हैव टू स्पेंड योर मनी ऑन दिस। और खैर उस चीज़ से बचने के लिए और माइक्रोसॉफ्ट लाइक बीइंग सो मच ट्रांसपेरेंट एंड इनवैल्यूएबल टू द कस्टमर्स, इस वजह से ये पॉलिसी निकाली गई है कि जी आपकी जो रोल बेस्ड सर्टिफिकेशन है अगर वो आप टॉपिक्स देख लेते हैं और एक मिनी टेस्ट पास कर लेते हैं तो आपकी जो सर्टिफिकेशन है वो एक्सटेंडेबल हो जाती है। देन आपके Q&A है कि बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट लर्न ना सिर्फ एक लाइक वन साइडेड लर्निंग जर्नी है बल्कि इट्स अ कंप्लीट कम्युनिटी। आपकी तरह के मिलियंस ऑफ यूजर्स माइक्रोसॉफ्ट लर्न पे हैं और सॉर्ट ऑफ एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म और पूरी एक कम्युनिटी है। अचीवमेंट्स हम पहले ही बात कर चुके हैं। कलेक्शंस इज समवट लाइक यू कैन से कि यानी आप के आप डिफरेंट मॉड्यूल्स की एक लिस्ट बना सकते हैं, जिस तरह आप लेट सपोज एक यूट्यूब की वीडियोस की एक प्लेलिस्ट बना सकते हैं, उसी तरह आप यहाँ पे अपने कलेक्शंस बना सकते हैं। ट्रांसक्रिप्ट इज समवट लाइक हेयर यू हैव एक्चुअली मतलब आपका एक कंप्लीट स्नैपशॉट बताता है कि जी मैंने 530 मॉड्यूल्स कंप्लीट किए हुए हैं, मैंने 4 एग्जाम पास किए हुए हैं। इसके अलावा एक्चुअली जो बाकी पहले एग्जाम्स थे वो आपकी क्रेडली की प्रोफाइल पे शो होंगे। लेट मी एक्चुअली शो यू द क्रेडली प्रोफाइल एज वेल, कि वो क्रेडली पे शो होते हैं लेकिन वो अब इधर तब नहीं होते बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट लाइक अब एज फर्स्ट हैंड माइक्रोसॉफ्ट लर्न को लेके आ रहा है आगे विदाउट यूजिंग एनी ऑफ द अदर बैजिंग और क्रीडेंशियल प्रोवाइडर। मैं अगर इस पे डैशबोर्ड पे अगर आपको लेके जाऊं
तो जितनी आपकी सर्टिफिकेशंस आपने आज तक की होती हैं वो आप को शो होने लग जाती हैं. लेट मी एक्चुअली हैव अ पब्लिक. ओके, just give me a second. Let us go like this way. Okay, this is actually the public preview of my profile. तो खैर दिस शोज के मेरे टोटल 47 बैजेस हैं, यानी 47 सर्टिफिकेशंस हैं. इसमें ज़ाहिर है जो माइक्रोसॉफ्ट की पुरानी सर्टिफिकेशंस हैं लाइक आईबीएम, सिस्को या बाकियों की तरफ से, गिटहब की तरफ से जो है वो तो यहीं पे हैं. लेकिन माइक्रोसॉफ्ट की जो नई सर्टिफिकेशन होंगी, मेरी जो पुरानी है वो यहाँ पे लगी रहेंगी, लेकिन जो नई अभी मैंने 4 ली हैं वो माइक्रोसॉफ्ट लर्न पे अब शो हुआ करेंगी. तो माइक्रोसॉफ्ट लर्न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपके रेज्यूमे में ये चीज़ जाएगी, लेटर ऑन ज़ाहिर आपका एम्प्लॉयर देखेगा एंड नॉट. तो एक्टिव सर्टिफिकेशंस 4 हैं, 4 एग्जाम पास किए हुए हैं. ट्रेनिंग और कंप्लीटेड, 400 घंटे की ट्रेनिंग ली हुई है, विच इज़ लाइक अगेन आपके एम्प्लॉयर के लिए बड़ी एक अच्छी बात है कि लाइक दिस पर्सन हैज़ लाइक डन अ लॉट ऑफ स्टफ. फिर मॉड्यूल्स हैं और वो सारी चीज़ें, सॉर्ट ऑफ लाइक आपका एक तरह का एक कंप्लीट स्नैपशॉट है आपकी एक्टिविटी का ऑन माइक्रोसॉफ्ट लर्न. देन आज के हम मेन टॉपिक की तरफ ज़रा मूव करेंगे, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट लर्न इज़ लाइक अ वेरी वाइड टॉपिक जिस पे लाइक काफ़ी देर बात की जा सकती है. इसमें मैं अगर आपको ना एक जस्ट लाइक बहुत कम टाइम में एक स्नैपशॉट बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट लर्न से आप क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हैं. तो आपको लर्न बाय डूइंग से मुराद ये है कि आपको एक कंप्लीट सैंडबॉक्स मिल जाएगा. लेट्स सपोज आपके पास हायर के क्रेडिट्स नहीं है, लेकिन आप लर्न बाय डूइंग के हवाले से जो आपके मॉड्यूल्स हैं या लर्न पाथ्स हैं हायर के, उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक सैंडबॉक्स मिलेगा. एक साइड पे आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी कि करना क्या है आपने, और दूसरी साइड पे आपको हैंड्स ऑन प्ले ग्राउंड मिलेगा. तो दिस इज हाउ एक्चुअली यू कैन लर्न बाय डूइंग. फिर टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी प्लेटफॉर्म्स, जितनी भी टेक्नोलॉजीज टूल्स अवेलेबल हैं, उन सब की ए टू जी डॉक्यूमेंटेशन आपको यहाँ पे मिलेगी. इसके अलावा शोकेस योर स्किल्स का मतलब है कि आप माइक्रोसॉफ्ट की सारी सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं. हम इस पे जाएंगे अभी. लेट मी एक्चुअली ओपन इट एन अनदर टैब. फिर आप एक कंप्लीट कम्युनिटी है जहाँ पे आप क्यूएनए वगैरह कर सकते हो. कोड सैम्पल्स हैं डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस स्टैक्स में, लाइक ranging from JavaScript, Python and some of the other languages as well. इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट लर्न टीवी है या कुछ यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स या शोज हैं. आई माई सेल्फ बीइंग एम्प्लॉय एक्चुअली हैव कवर्ड लाइक 2 to 3 सेशंस जो कि यूट्यूब पे माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल चैनल्स पे अवेलेबल हैं. तो इस तरह माइक्रोसॉफ्ट के अपने एम्प्लॉयज़ या जो डेवरल की टीम रहती है वो इस तरह के लाइक सॉर्ट ऑफ सेशंस डिलीवर करती है ऑन द बेसिस ऑफ विच के आप बड़ी आसानी से चीज़ों को लेके जा सकते हैं. खैर इसके अलावा भी एडिशनल रिसोर्सेज हैं. माइक्रोसॉफ्ट स्टार्टअप्स आया बीच में, फिर स्टूडेंट हब है. स्टूडेंट हब में वो सारी रिसोर्सेज हैं जो कि एक स्टूडेंट को चाहिए मेकिंग अ करियर इन टेक्नोलॉजी. फिर एजुकेटर सेंटर है, उसमें जैसे हमने पहले भी एक सेशन माइक्रोसॉफ्ट लर्न फॉर एजुकेटर्स पे किया था कि वो सारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज दैट एक्चुअली आर हेल्पफुल फॉर एन एजुकेटर इन लेवरेजिंग देयर करियर्स या इन प्रोवाइडिंग अ फ्रूटफुल सॉर्ट ऑफ कंटेंट टू देयर स्टूडेंट्स. इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट लर्न ब्लॉग है जिसपे आपको हर टेक्नोलॉजी पे कोई ना कोई ब्लॉग मिल जाएगा. वर्चुअल ट्रेनिंग डेज की मैंने बात की कि ये एक कंप्लीट वर्चुअल डे होता है, लाइक अराउंड 8 to 10 आवर्स की ट्रेनिंग आपको एक वर्चुअल ट्रेनर देता है. और एट द वेरी एंड जब आप उसके मॉड्यूल्स कंप्लीट कर लेते हैं, देन आपको एक माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन वाउचर, एग्जाम वाउचर फ्रीली अवेलेबल कर दिया जाता है. माइक्रोसॉफ्ट रिएक्टर एक्चुअली हमारी वो तमाम कम्युनिटीज़ हैं जिनकी फिजिकल प्रेजेंस है. एग्जांपल के तौर पे माइक्रोसॉफ्ट बैंगलोर है, जहाँ पे डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर्स हैं या माइक्रोसॉफ्ट मोस्ट वैल्यूबल प्रोफेशनल्स हैं वो कनेक्ट होते हैं, कम्युनिटीज कनेक्ट होती हैं और वो डिफरेंट चीज़ों पे सेशंस वगैरह कंडक्ट कराते हैं. सिमिलर टू व्हाट यू कैन से कि जो हम हायर एजुकेशन कमीशन के साथ कोलैबोरेशन में करवाते हैं. तो लेट्स एक्चुअली मूव टू द मेन टॉपिक विच इज एक्चुअली सर्टिफिकेशंस फॉर टुडे. खैर आप डिफरेंट चीज़ें पढ़ सकते हैं कि जी माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशंस करके अप्लाइड स्किल्स क्या है. अप्लाइड स्किल्स पे पहले भी बात कर चुका हूँ. माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशंस को करने का क्या फ़ायदा है और
डिफरेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं कि जी 91% ऑफ द सर्टिफिकेशन कैंडिडेट्स जिन्होंने एक माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन की, वो अपने एबिलिटीज या अपने स्किल सेट में ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं बाकी लोगों के 77% लोगों को, लाइक दे वर बेटर एबल टू हैव देयर स्टार्टअप्स। और खैर ये डिफरेंट सारी चीजें हैं। सबसे पहले एज एक्चुअली ना एज लाइक फर्स्ट टाइम लर्नर हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे आप डिस्कवर करेंगे सबसे पहले कौन सी सर्टिफिकेशन आपने करनी है। फिर आपने उसके हवाले से ट्रेनिंग लेनी है। ट्रेनिंग कैन बी बोथ थ्योरेटिकल भी और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी। देन फिर ज़ाहिर है आपने एक प्रैक्टिस एग्जाम देना होता है। वो आप देते हैं तो मजीद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाता है। देन फिर आप एक ओरिजिनल एग्जाम देते हैं जो कि पीयरसन व्यू के थ्रू होता है। देन फिर आप sort of like you share your achievements और then फिर आप उन्हें रिन्यू भी करते हैं। तो दिस इज एक्चुअली द होल लाइफ साइकिल ऑफ अ माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन। खैर ये डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एक चीज़ें हैं फॉर माइक्रोसॉफ्ट, लाइक सॉर्ट ऑफ टेस्टिमोनियल्स। अभी हम जाएंगे और ब्राउज करेंगे माइक्रोसॉफ्ट की जितनी सारी सर्टिफिकेशंस हैं वो आपको यहाँ पे रिडीली अवेलेबल होंगी। फॉर नाउ माइक्रोसॉफ्ट की जो टोटल नंबर ऑफ सर्टिफिकेशंस हैं वो रेंज करती हैं 70 to 75 सर्टिफिकेशंस। अब एक्चुअली मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइक आप इसको डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फिल्टर्स दे सकते हैं, प्रोडक्ट्स के बेस पे, रोल्स के बेस पे, लेवल्स के बेसिस पे, और सब्जेक्ट की जो हार्डनेस है या टफनेस है उसकी भी बेसिस पे आप कर सकते हैं। अभी बिकॉज रिसेंटली एक सॉर्ट ऑफ एक ब्रीच भी था खैर सिक्योरिटी, बिकॉज लाइक तीन चीज़ें बड़ी हैं। मैं एक क्लाउड कंप्यूटिंग है, एक एआई है, और एक सिक्योरिटी जो आजकल एक बजिंग वर्ड बने हुए हैं। तो लेट्स एक्चुअली स्टार्ट विद लाइक दिस प्रोडक्ट एज्योर। अब देखिए 73 रिजल्ट्स की जगह जस्ट 22 रह गए। और इसमें हम फोकस ये करेंगे कि जो हमारा सॉर्ट ऑफ यानी एक एज्योर एआई फंडामेंटल्स, लाइक एआई की बात होती है तो हम एआई 900 आई बिलीव इसका कोर्स कोड है। उसको जब मैंने क्लिक किया तो ये पेज खुल गया जो कि स्पेसिफिकली उस सर्टिफिकेशन का एक कंप्लीट पेज है जिसपे आपको सारी रिसोर्सेज मिल जाएंगी। एट अ ग्लैंस देखें तो ये बिगिनर लेवल की सर्टिफिकेशन है। प्रोडक्ट जो इसमें यूज होगा वो एज्योर है। इसको करने के बाद आप किन रोल्स के लिए एलिजिबल होंगे? आप एक एआई इंजीनियर या एक क्लाउड एआई इंजीनियर के रोल के लिए आप आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। और जो इसका मेन कोर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। ये भी बता रहा है कि आखिरी बार ये सर्टिफिकेशन माइक्रोसॉफ्ट ने कब अपडेट की थी, विच इज़ लाइक 25 अप्रैल 2024। अच्छा, जैसे ये मेन चीज यहाँ पे लिखी भी है कि लाइक प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, प्रैक्टिस एग्जाम एंड देन टेक द एग्जाम। तो खैर दिस इज एन ओवरव्यू के एग्जैक्टली इस सर्टिफिकेशन में क्या क्या होगा, कौन से आपके स्किल्स मैयर होंगे। डिफरेंट एआई के जो हमारे टॉपिक्स हैं जिस तरह नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, कंप्यूटर विजन है, मशीन लर्निंग है, उनके बारे में पूछा गया है। देन आपने आपके सामने खुद ही चीज खुल के आ जाती है विच इज लाइक प्रिपेयर फॉर एग्जाम। जब आप अब जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये एक कंप्लीट कोर्स है, आप देख सकते हैं, विच इज एक कोर्स। ये हमारा एग्जाम था और ये हमारा कोर्स है विच इज कोर्स AI 900T00 माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एआई फंडामेंटल्स। ठीक है जी। और इसकी ड्यूरेशन कितनी है? एक दिन में आप आसानी से ये कोर्स कर सकते हैं। ऑडियंस कौन सी होनी चाहिए? कोर्स का जो सिलेबस है वो क्या है? तो ये एक दो तीन चार पाँच, पांच लर्निंग पाथ्स को मिला के एक कोर्स बनाया गया जिसमें पहले एज्योर एआई के फंडामेंटल्स हैं, फिर कंप्यूटर विजन है, फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, फिर डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस है, फिर जनरेटिव एआई है। तो इन सब मॉड्यूल्स को जब आप कर लेते हैं तो लाइक यू विल गेट अ क्रेडेंशियल कि जी इस बंदे ने ये कोर्स किया हुआ है। और जब आप ये कोर्स कर लेते हैं तो यू आर लाइक 80 to 90% प्रिपेयर्ड के लाइक ये सारी चीज़ें आप लोग रेडली अवेलेबल कर देते हैं। और 80-90% आपको श्योरिटी हो जाती है कि जी आई एम वेल प्रिपेयर्ड फॉर अ माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन। इसके बाद और ड्यूरिंग एक्चुअली दिस ट्रेनिंग आपको मैं अगर लेके जाऊं विच इज लाइक कंप्यूटर विजन पे, बिकॉज बेसिक्स पे तो शायद सारे लोग ही थोड़े से फ्लेक्सिबल होते हैं। देख लें इस तरह के बीच में आपको ना यूट्यूब की या माइक्रोसॉफ्ट लर्न की अपनी वीडियोस भी मिल जाती हैं।
अगर मैं यहाँ पे एजर एजर एआई विजन पे क्लिक करूंगा, मैं बीच में से फिलहाल जस्ट चेरी पिक कर रहा हूँ इस वजह से, ताकि आप लोगों को थोड़ा कोर्स कंटेंट मिले कि ना सिर्फ ये थ्योरेटिकल और लाइक प्रिसाइजली चीज़ें मैयर की हुई हैं, बल्कि ये भी कह रहा है कि दीज टास्क कैन बी परफॉर्म्ड इन एजर एआई विजन स्टूडियो। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो एक कंप्लीट फुल फ्लैश सैंड बॉक्स खुल जाएगा एजर का, रिगार्डलेस कि आपके पास एजर के क्रेडिट्स हैं कि नहीं है, दैट इज एक्चुअली डिफरेंट थिंग। खैर फिर सॉर्ट ऑफ आपको डिफरेंट चीज़ों को ट्रेन किया जाता है, और देन लाइक दिस इज कंप्यूटर विजन, तो ज़ाहिर है वो डिफरेंट फ्रूट्स वेजिटेबल्स का पूछ रहा है, और वो सारी चीज़ें ना फिर आप एयर पे बड़ी आसानी से कर भी सकते हैं। तो दिस वाज एक्चुअली ऑल अबाउट द कोर्स कि कैसे आप प्रिपेयर करेंगे। अब नाउ एक्चुअली वील मूव फॉरवर्ड। फिर आप एक प्रैक्टिस टेस्ट भी दे सकते हैं। देखें, ये माइक्रोसॉफ्ट का एक पार्टनर है, उनके साथ भी आप दे सकते हैं, लेकिन वो पेड सर्विसेज हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने अब ये फीचर अनाउंस किया है कि जिसमें आप सॉर्ट ऑफ अपनी तैयारी का जो लाइक जब आप ये कोर्स कर लेते हैं तो लाइक यू आर 80-85% श्योर कि हाँ यार आई एम वेल वर्स्ड इन दिस पर्टिकुलर स्टफ। लेकिन उसको जस्टिफाई करने के लिए या असेस करने के लिए बिफोर एक्चुअली गोइंग इनटू द एक्चुअल एग्जाम, आपने ये करना होता है कि आप ना माइक्रोसॉफ्ट का ये एक प्रैक्टिस एग्जाम बनाया गया, वो आप कर सकते हैं। अब मैं इसका एक अगर क्वेश्चन करने की कोशिश करूँ, विच इज लाइक which natural language processing technique assigns values to words such as plant and flower so they are considered closer to each other than a word such as airplane? तो लाइक आई बिलीव के ओके, सो यहाँ पे एनग्राम्स आई बिलीव कैन बी अ गुड थिंग। तो खैर इस तरह के आप ना डिफरेंट प्रैक्टिस एग्जाम्स को कंडक्ट कर सकते हैं, और लाइक यू कैन हैव सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस कि जो मैंने तैयारी की है उसके थ्रू लाइक मैं कितना अच्छे से चीज़ें कर सकता हूँ। फिर आप जब प्रैक्टिस एग्जाम भी दे चुके होते हैं, देन फिर आप ना ज़ाहिर है रियल सर्टिफिकेशन से पहले पहले ये चाहते हैं कि यार एग्जैक्टली इन्वायरमेंट कैसा होगा माइक्रोसॉफ्ट के जब हम सर्टिफिकेशन दे रहे होंगे। तो इसके लिए भी माइक्रोसॉफ्ट का एक फीचर है माइक्रोसॉफ्ट लर्न में, कि जिसमें ना आपको एक कंप्लीट उस तरह का इन्वायरमेंट दिया जाता है जिसके अंदर यानी आपकी विंडो लॉक हो जाती है, या ऊपर जो आपका टाइम फ्रेम दिख रहा होता है और कैसे आपके क्वेश्चंस आएंगे, लाइक इस तरह का ही आपका जो ओरिजिनल टेस्ट होता है या सर्टिफिकेशन होती है, मैं उसे स्टार्ट करता हूँ तो इस तरह के आपको ना क्वेश्चन रोल आउट हो रहे होते हैं इस तरह, सॉर्ट ऑफ दिस। देन आप इस तरह तो लाइक ये बिल्कुल एक सिमिलर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जाके ना, बिकॉज कुछ लोगों की तैयारी अच्छी भी होती है लेकिन दे फील इंटिमिडेटेड कि यार मेरी शायद तैयारी अच्छी नहीं है, या मैं बहुत अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाऊंगा। तो उसके लिए बेहतरीन चीज़ ये है कि आप इस सैंड बॉक्स को यूज़ करें, और उस प्रेशर को या लाइक यू नीड टू एक्चुअली कोप अप विद योर नर्व्स। तो अपनी नर्व्स को बंदा आसानी से ना कंफर्टेबल कर सकता है। then actually again एक sort of एग्जाम टेकिंग कुछ गाइडलाइंस होती हैं, और फिर आपकी अकोमोडेशंस भी आप ले सकते हैं। लेट्स सपोज अगर किसी बंदे को हेयरिंग एड का इशू है, बिकॉज आपके सामने पियर्सन के इंस्ट्रक्टर्स या इन्विजिलेटर्स ड्यूरिंग द एग्जाम बैठे होंगे। डिफरेंट आप लैंग्वेजेस में दे सकते हैं। अब मैं अगर इसे पाकिस्तान सेलेक्ट करूंगा तो आई बिलीव 99 से 55 यूएसटी पे आ चुका है। ये माइक्रोसॉफ्ट की एक पॉलिसी है विच वी एक्चुअली कॉल लाइक price based on the country or region where the certification exam is being undertaken। तो परचेज पावर पैरिटी के हिसाब से डिफरेंट नेशंस में ये डिफरेंट रेट्स रहते हैं। बाकी आप अगेन अभी तो सिर्फ आपने एक कोर्स किया इस टॉपिक के हवाले से, आप मजीद भी जितनी सर्टिफिकेशंस के रिसोर्सेज हैं वो दे सकते हैं। इसमें स्टडी गाइड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और सर्टिफिकेशन पोस्टर को भी मैं ज़रा खोल के आपको बताऊंगा। एग्जाम रीप्ले सपोर्ट फॉर क्रेडेंशियल्स, और माइक्रोसॉफ्ट क्रेडेंशियल अगेन वही दोबारा सर्टिफिकेशन के पेजेस पे आने वाली चीज़ है। लेकिन जो इसके अलावा मेन चीज़ है वो है कि ये अब स्टडी गाइड है ना। स्टडी गाइड इज समवट लाइक के वो सारी चीज़ें जो आपने पढ़नी है इन्होंने एक डॉक्यूमेंट के अंदर आपको बता दी है। देखें सारी सर्टिफिकेशंस के लिए स्टडी गाइड्स अवेलेबल हैं। तो इसमें ये बताता है कि यानी सॉर्ट ऑफ एक कोर्स कंटेंट या सिलेबस आपको बताता है कि आपने क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी है अच्छे से फॉर दिस। और साथ ये भी बताता है कि जी
किस डेट से पहले क्या चीज़ मैयर होती थी, अब दोबारा जब ये एग्ज़ाम हो चुका, बिकॉज अक्सर लोग ये करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एग्ज़ाम्स के लिए कि वो डंप्स वगैरह को रीड कर लेते हैं और वो समझते हैं कि लाइक दे कैन गेट इन टू इट, बट अगेन अगर उस टाइम तक एग्ज़ाम ही अपडेट हो जाता है तो वो चीज़ें प्रोसेस नहीं हो पाती। तो खैर स्टडी गाइड बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्लस ये एक माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक फुल फ्लैज एक पोस्टर है कि जी आपने ये सर्टिफिकेशन करनी है, तो ये रोल बेस्ड किसके साथ अलाइन होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में। और आप अगली सर्टिफिकेशन जो इसके साथ अलाइन है वो डाटा एआई में है। इस तरह रोल बेस्ड भी चलती हैं चीज़ें। और आपके पास ना फंडामेंटल्स, फिर रोल बेस्ड हैं, फिर स्पेशलिटी बेस्ड हैं। जिस तरह एजूर सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट एक्सपर्ट एक ऐसी है जो कि सॉर्ट ऑफ लाइक एडवांस्ड रोल बेस्ड सर्टिफिकेशन है। तो आप इससे बड़ा अच्छा आइडिया ले सकते हैं कि जी पहली एक सर्टिफिकेशन मैंने कर ली, लेकिन ऑन टॉप ऑफ इट मैं कौन सी ऐसी सर्टिफिकेशंस कर सकता हूँ कि जिससे मुझे इंडस्ट्री में कोई रोल एक्वायर हो सके। तो इसके लिए डायरेक्टली हम जाएंगे। एक्चुअली फंडामेंटल्स के एग्जाम्स के लिए हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं कि आप दो तरीके से स्केड्यूल कर सकते हैं। अगर आप कोई स्टूडेंट या एजुकेटर हैं तो आप सर्टिपोर्ट के थ्रू कर सकते हैं। सर्टिपोर्ट का मैं पहले भी एक्चुअली एक वीडियो भी बना चुका हूँ कि हाउ यू कैन एक्चुअली डू दिस थिंग विद सर्टिपोर्ट, विच इज़ आई बिलीव कि वो आप सब लोग इससे ज़्यादा लाइक बड़ी आसानी से बल्कि लेट मी एक्चुअली गेट स्टार्टेड विद बोथ। आपको मैं दोनों का बता देता हूँ कि पियर्सन पे कैसे आप करेंगे, प्लस आप सर्टिपोर्ट पे कैसे करेंगे। तो ज़्यादातर लोगों का पियर्सन का होता है, तो हम पियर्सन से स्टार्ट लेंगे। लेट मी एक्चुअली गो टू इट। 2 मिनट रुकिएगा। और इफ आई गो इनटू दिस, अभी मैं थोड़ा जल्दी से ही चीज़ें भरने की कोशिश करूँगा फॉर द सेक ऑफ डेमो। देन ओके, वील गो देयर। और अब ये प्रोसेस होगा और ये मेरी सर्टिफिकेशन एग्जाम की जो लिंक्ड प्रोफाइल है उस पे चला जाएगा। ये देख रहे हैं आपके माइक्रोसॉफ्ट लर्न के पोर्टल से रीडायरेक्ट हो गए पियर्सन व्यू के जो इनका एग्जाम सेंटर है उस पे। अब ये है कि हम आप इन पर्सन भी दे सकते हैं। पाकिस्तान में कुछ पियर्सन व्यू के आउटलेट्स हैं इन और मेजर सिटीज, लेकिन बेटर ऑप्शन ये रहता है कि आप ऑनलाइन जाएं। और लाइक विद दिस तो खैर ये वो सारी चीज़ें हैं कि जो आपने लाइक आपकी टेस्टिंग स्पेस ऐसी होनी चाहिए कि जो बिल्कुल लाइक ब्लैंक स्पेस हो, वहाँ पे कोई लाइक नोटबुक कॉपी कोई इस तरह की चीज़ भी ना हो, पेन वगैरह। और इसके अलावा कोई डिजिटल भी ऐसी चीज़ ना हो जैसे ईयरफोन्स और वो सारी चीज़ें, या कोई सेकंड स्क्रीन वगैरह, जहाँ से लाइक देयर कैन बी एन ऑप्शन कि इन्विजिलेटर समझे कि लाइक यू आर नॉट यूजिंग फेयर मीन्स ऑफ एग्जाम्स। इसके अलावा आपने अपना सीएनआईसी पास रखना होता है, और आप अपने सीएनआईसी को स्कैन करते हैं और इन्विजिलेटर आपसे पूछ रहा होता है, तो आप वो सारी चीज़ें भी कर रहे होते हैं। फिर इसके अलावा आप एक शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हैं जहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि कैसे पियर्सन व्यू को आपने एग्ज़ाम करना है। सो फॉर दैट ओके, then we have actually just to give you uh, okay, एक्चुअली अब ये सिस्टम टेस्ट के लिए एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करता है जो कि हमारे बैंडविड्थ और बाकी सारी चीज़ों को मेजर करता है, और हाउ यू कैन एक्चुअली गेट स्टार्टेड विद दिस। खैर ये अभी रीस्टार्ट का भी कह सकता है, या अक्सर बैंडविड्थ का इसका इशू होता है, उसको भी हम प्रॉपरली देख लेंगे। लेकिन फॉर नाउ let actually be making it more comfortable. I'm going to the home of Pearson just to get started with it. मैं एक और सर्टिफिकेशन उठाता हूँ यहाँ से, और I'll be going with uh, Pearson View scheduling exam. Uh, let me first of all like go with this one. Okay.
अच्छा, for this actually, as of now, I believe. Okay, okay. Just to like give you a sort of, मैं पीएसएन व्यू पे अपनी प्रोफाइल लॉगिन करूंगा, शायद लॉगिन की वजह से कोई इशू आ रहा है इधर। और दिस, मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट सर्च करूंगा। विल गो इनटू दिस। अब मैं लॉगिन करूंगा। ओके, दिस इज एक्चुअली द मेन थिंग। और देन आई गो इनटू, मैं क्रेडेंशियल्स पे जाऊंगा, सर्टिफिकेशंस, then we have like you're administrator associate, take the exam, Pakistan, schedule exam. Now this is, and I have like this. खैर, जब आप उस पे रीडायरेक्ट होते हैं, देन एक्चुअली इट सेज कि आप इस तरह कर सकते हैं। और एक शॉर्ट वीडियो भी है जिसपे इन्होंने आगे का सारा बताया हुआ है, विच इज लाइक वेरी इजी। आई बिलीव कि आपने सिर्फ अपना अलॉटेड टाइम उठाना है, डेट उठानी होती है, और आखिर में इन केस अगर आपके पास कोई वाउचर है तो आप वो बड़े अच्छे से उसे इनपुट कर सकते हैं फॉर दैट। और उसके बाद लाइक योर योर एग्जाम एक्चुअली गेट स्टार्टेड विद इट। आई बिलीव शायद मैंने ये पहले से दिया हुआ है, दैट्स व्हाई एक्चुअली इट्स एज ऑफ नाउ नॉट वर्किंग फॉर मी। और ज़ाहिर है मुझे फिर ये कंप्लीट चलाना पड़ेगा कि इसमें सिस्टम टेस्ट होगा सबसे पहले, फिर ये मेरी इर्द गिर्द की जो टेस्टिंग स्पेस है उसे देखेगा, फोटो आईडी रिकॉग्नाइज करेगा, और देन फिर इन सब चीज़ों को हम लेके चलते हैं। इसमें आप सिंपल एक इंग्लिश सेलेक्ट कर लें, देन यू हैव एक्चुअली sort of like accepting all these terms, simple. Then by doing this and like third party limited license facial comparison policy, ताकि कोई unfair means ना हो सके, we'll be selecting this all और agree करेंगे। Then you have actually this thing, अभी कह रहा है कि जी एशिया कराची पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम है, तो आई बी सिंग लाइक यस दैट्स राइट। इसके अलावा आप अपनी स्केड्यूल कर सकते हैं। आज 22 तारीख है, मैं लेट सपोज 25 थर्सडे की करूँगा, और देन फिर नेक्स्ट वो टाइम पूछेगा मुझसे, मैं 12 और के ही टाइम रखूँगा। तो एक ही टाइम स्लॉट दिख रही है मुझे। फ्राइडे का मैं देखता हूँ, उस दिन मुझे एक ही दिख रही है। मैं ट्यूसडे का देखता हूँ अभी कितनी है, वो भी एक ही स्लॉट है। एक्सप्लोर मोर टाइम्स पे क्लिक करूँगा तो खैर वो मुझे बता रहा है कि हमारा मतलब चार पांच और चीज़ें हैं। मैं 11:45 AM को सिलेक्ट करता हूँ, बुक दिस अपॉइंटमेंट पे जाऊँगा। अच्छा जी, ये मेरी ना अब बुक हो चुकी है, विच इज़ लाइक 80 USD। अब आपने क्या करना है कि ये खैर मैयर अब हमारा एक पार्टनर है जिस पे आप प्रैक्टिस एग्जाम टेस्ट दे सकते हैं, वो उसके भी खैर लाइक कुछ पैसे लगाएगा। लेकिन फॉर नाउ आई विल बी जस्ट सेइंग कि जी 80 USD में आपका हो गया, और आप प्रोसीड टू चेकआउट जब करेंगे, यहाँ पे आपको हायर एजुकेशन की तरफ से जो फॉर्म वर्दी डायरेक्टर साहब राशिद साहब ने आपको भेजा, उसको यूज करते हुए आप सॉर्ट ऑफ ना, यहाँ पे रहेगा आपका वाउचर या प्रोमो कोड, जो कि इस हिसाब से होगा जिसमें कुछ डिजिट्स और कुछ नंबर्स होंगे। जब वो आप अभी तो जाहिर है मैंने एक रैंडम टेस्ट किया जिसकी वजह से वो यूज नहीं हुआ प्रॉपर। जब वो यूज हो जाएगा तो यहाँ पे डिस्काउंट लिखा आएगा, जितनी टोटल प्राइस होगी आपकी सर्टिफिकेशन की वो डिस्काउंट हो जाएगा, और आपको 0 USD पे करना पड़ेगा।
और बड़ी आसानी से आपका जो पेमेंट वाला ये स्टफ है ये लाइक इट कैन गो अवे। और दिस इज हाउ एक्चुअली, और इसके फौरन बाद आपको ईमेल आ जाएगी, और दिस इज हाउ एक्चुअली यू स्केड्यूल योर एग्जाम ऑन पियर्सन व्यू। एक चीज ये हो गई। इसके अलावा सर्टिपोर्ट का तरीका इससे भी ज्यादा आसान है, लेकिन सर्टिपोर्ट अब पुराना तरीका हो गया, तो मोस्ट ऑफ द पीपल एक्चुअली प्रेफर पियर्सन व्यू। सर्टिपोर्ट पे भी लाइक इट्स नॉट दैट मच हार्ड। लेट मी एक्चुअली गेट दैट इनटू इट। आई नीड टू एक्चुअली स्टॉप शेयरिंग माई स्क्रीन। मैं इसमें पासवर्ड पुट इन करने वाला हूँ। just give me a minute or so. Let me actually have this thing. We have Certiport. खैर सर्टिपोर्ट के हवाले से मेरी एक वीडियो भी है जो कि आप लोग देख सकते हैं। वी हैव एक्चुअली रोल्ड आउट टू सम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। और सही, लेट मी पुट द पासवर्ड इन। I believe ये लॉगिन हो जाए तो I'll be sharing my screen again. सही, got it. So let me actually share my screen again first of all. Okay, so here we go, sharing the screen. Okay, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि this whole exam या जो इसकी एक sort of stuff है वो मेरे पास खुल के आ गया। अब इसमें मैंने जो माइक्रोसॉफ्ट के पहले एग्जाम एमओएस के दिए हुए थे, एमटीए के या एमसीटी के, वो सारे अवेलेबल आ जाते हैं यहाँ पे। इसके अलावा अब आपने डायरेक्टली क्या करना है या कैसे इस पे एग्जाम स्केड्यूल करना होता है, यहाँ पे आप को जो एचईसी की तरफ से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट के जो हैं वो आप इसके थ्रू देंगे, या इवन फंडामेंटल्स के भी दे सकते हैं। तो वो कोड जो होगा, जो इस एबिलिटी का होगा, इस फॉर्मेट का होगा, आप उसे करेंगे असाइन वाउचर और लाइसेंस टू मी। जब आप इस पे क्लिक करेंगे, अभी तो खैर ये इट्स अ डमी वन, तो ये प्रोसेस नहीं करेगा, लेकिन जब ओरिजिनल कोड इस पे डाला जाएगा तो डायरेक्टली आपके पास ना खुल के आ जाएगा कि ये सारी चीजें हैं। इसी तरह लाइक एक ही नेक्स्ट पेज होगा जिस पे आप डेट और टाइम सेलेक्ट कर लेंगे और आपको एक ईमेल आ जाएगी। लेकिन आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप सर्टिपोर्ट को ना यूज करें, बल्कि जो पियर्सन की दूसरी सर्विस है विच इज ऑन व्यू। तो दिस इज एक्चुअली द मोस्ट कन्वीनियंट और सबसे ज्यादा मॉडर्न उनका फीचर है, जो कि सर्टिपोर्ट का ऑन व्यू है। बिकॉज अब सर्टिपोर्ट को भी पियर्सन ही ऑन करता है, तो दे एक्चुअली रेकमेंड दिस थिंग के आप ये चीजें यूज करें। तो दिस वाज आई बिलीव लाइक ऑल के मैंने आपको पियर्सन के थ्रू भी बता दिया कैसे आप स्केड्यूल कर सकते हैं और कैसे सर्टिपोर्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। तो फॉर ऑल द वाउचर्स आई वुड से जो फॉर्म वर्दी डेप्यूटी डायरेक्टर आईटी राशिद साहब ने जो शेयर किया था वो आप देख सकते हैं। और इसी के साथ आई बिलीव लाइक वी हैव कम क्लोजर टू द adjourning of this session. Again, I would actually like to take this moment to like thank Higher Education Commission's EDU TV team, especially Vardi Jahangir Saab, as well as Rashid Saab actually for like pulling off Education Transformation Agreement ETA live sessions right on EDU TV. तो आई होप कि आपको आज पता चला होगा कि हाउ यू कैन एक्चुअली प्रिपेयर फॉर माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन एग्जाम्स और कैसे स्केड्यूल कर सकते हैं। और ये दोनों चीज़ें आपको करने के लिए कोई थर्ड पार्टी सर्विस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि माइक्रोसॉफ्ट लर्न विच इज़ और फ्री लर्निंग रिपोजिटरी, उसको हार्नेस करके आप अपने स्किल्स को और सर्टिफिकेशन को लेवरेज कर सकते हैं। विद दैट आई विल बी एक्चुअली taking pause and taking leave, adjourning this session and signing off. Jazakallah, apna ख्याल रखिएगा, and till then we have actually some of the very good sessions coming in from our colleagues at US, like Pakistanis at Microsoft. So like their sessions are like soon coming up in August. So stay tuned for us with us for these sessions, और अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज।